Very good afternoon to all of you, beta. Today we are going to start with chemical thermodynamics. Okay. Now, chemical thermo means it is related to what, beta? Heat. Now, in this chapter, beta, we are going to study change of energy, heat energy, in two places. पूरे चैप्टर में हम लोग को दो ही करना है बेटा. One is what, beta? Physical. When gas is compressed or expanded, what will happen to the energy changes? Okay. Second is what, beta? During chemical reaction, what will happen to energy change? Exothermic and endothermic reaction. But before starting this, we have to study certain parameters. Okay. So in this entire chapter, we are going to take two things. First, we'll take gas, we'll compress it and expand it. Second, we are going to do what? During chemical reaction, what all chemical changes take place. Okay. आजा भाई. So energetic is derived from the word energy. Energy is the capacity to do work. Okay. So if the brick is at the ground and I've lifted in my hand. So when I lift it in a hand, which energy is there? Potential energy. If I throw it down, it will fall down. It will get converted into what? Kinetic energy. So potential energy is due to position and kinetic energy is due to motion. So now here maximum kinetic energy will be there, right? Here at the center. At the extreme point, which energy will be maximum? Potential energy. Right? Capacity to do work. But if I apply force, what will happen? Displacement will take place and work will be done. Okay, fine. Ball को ऊपर हाथ में पकड़ के रखा है तो which energy it is there? Potential. If I throw it, then it will get converted into which energy? Kinetic energy. Heat energy. But heat will transfer if I heat it. So if it is a metal, it will get transferred here or not? Tell me. Radiant energy, electrical energy, so many energy, chemical energy during chemical reaction, bond formation, bond breaking. Okay, if I store water at the high, in then that potential energy, if it will falls on the turbine, then it will get converted into what? Fall on this, it will get converted into kinetic energy. And then turbine will rotate and it will produce what? Electrical energy. Electrical energy will come to our house and we'll get what? Light energy. Clear? So thermodynamics, what we are going to study, it is a branch of science which deals with different forms of energy and quantitative relation between the energy changes that occur during physical and chemical means during chemical reaction. Physical when gas is expanded or contracted. Scope of thermodynamics. Hey, with the knowledge of thermodynamics, I can predict whether the reaction will take place or not. Whether the reaction is possible under certain condition or not. It tells us the direction and it also will tell us about the different energy changes. What does thermodynamics does not cover? Okay. It does not give us any information about the rate of reaction. It only consider which state, initial and final. It gives only information about initial and final. It does not give any information about the mechanism. Mechanism हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? Halogen derivative में पढ़ा था ना, SN1, SN2. For that we have to perform experiment in the lab. It deals with only big property, not the microscopic property. Okay. So now chalo beta, anything acha. Now suppose beta, if I want to study about this bottle. So now we are going to study the different terms. Sit बेटा, पहला टर्म क्या है? सपोज मुझे बॉटल के बारे में पढ़ना है तो दिस इज नोन एज सिस्टम. दिस इज नोन एज सिस्टम. ये बॉटल के बाजू में इमेजिनरी लाइन है कि नहीं है? यहाँ पे इमेजिनरी नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड लाइन है. इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाउंड्री. क्या कहेंगे? अच्छा. दिस इज एनीथिंग विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन और स्टडी. इट इज नोन एज सिस्टम. बाउंड्री. Outside is what beta? Surrounding. And system plus surrounding will become what? Universe. Will become. So this is system, this is surrounding, this is boundary. Can you see? So system, surrounding, boundary, and what? Universe. So system is what? It is a part of the universe which is under thermodynamic consideration. Suppose मुझे ये flame के बारे में पढ़ना है तो this is my system. Okay. Surrounding what? Anything which is outside the system is what? And it is a part of the universe, right? Boundary means what? Boundary there are two types. एक तो वर्चुअल होगा और एक है ना रियल होगा बेटा. Real or imaginary, rigid and non-conducting, and forget about that. We have to study only about what is boundary. It separates system from surrounding. Then what is system plus surrounding? क्या बन जाएगा? Universe. System plus surrounding will become what? तो चलो बेटा अभी आ जाओ यहाँ पर, मेरा नोट्स में आ जाओ. पहले यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है. बोलो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर? बोलो. सिस्टम.
फिर सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है? बाउंड्री. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू व्हाट? नहीं नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन इट विल बी इक्वल टू व्हाट? बस. नाउ टाइप ऑफ सिस्टम बेटा, चलो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम. अच्छा बेटा, ये बॉटल भर के रखा है, दिखाई दे रहा है? वायल. ओके, सो व्हाट इज दिस? बॉटल इज व्हाट? योर सिस्टम. उसका इमेजिनरी लाइन है बेटा, बाहर का पार्ट क्या होगा तुम्हारा? बोलो. सराउंडिंग. बाउंड्री कौन सा है तुम्हारा? ग्लास वायल इज द बाउंड्री. ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी. मैंने ना अभी ये चाय रखा है, गर्मा गर्म चाय. ओए चाय, गर्मा गर्म चाय. ये देखो, ये कंटेनर ओपन रखा है तो क्या होगा आपका? हाँ, आएगी बात नहीं बेटा. ए, ये गर्म चाय है बेटा, अगर मैंने इसको ओपन रखा है तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? चाय ठंडा होगा कि नहीं? अच्छा, चाय के अंदर वाटर वेपर होते हैं तो थोड़ा वाटर होता है, वो इवापोरेट होगा कि नहीं? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ बोथ और नॉट? टेल मी मैटर. विल देयर बी एक्सचेंज ऑफ मैटर? टेल मी. कैन मैटर कैन एक्सचेंज? कैन हीट कैन एक्सचेंज इन दिस? यस, चाय ठंडा हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद. So what is open system? It is a system in which both exchange of what? So this is your open system. Open system में क्या होगा? Exchange of matter as well as what? Energy. आ जाते हैं, अभी चाय पे मैंने ढक्कन लगा दिया बेटा, तो थोड़ी देर के बाद हाफ एन आवर चाय ठंडा होगा कि नहीं? बोलो. लेकिन अंदर का पानी बाहर जाएगा क्या? नहीं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम. व्हाट कैन बी एक्सचेंज? ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर. इट कैन एक्सचेंज मैटर इल. कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? यस. अभी बेटा ये चाय को मैंने थर्मस में डाल दिया बेटा, वाह, तो चाय ठंडा होगा क्या? ओके, अंदर से वाटर वेपर गायब होने वाला है क्या? तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन एक्सचेंज. कैन मैटर एक्सचेंज? कैन एनर्जी एक्सचेंज? क्लियर है? तो तीन सिस्टम के बारे में पूछेगी बेटा. ओपन सिस्टम इज व्हाट? बोथ मैटर एज वेल एज. क्लोज में क्या होगा सेट बेटा? ओनली एनर्जी. एंड आइसोलेटेड में क्या होगा? बोलो. नाइदर एनर्जी नॉर मैटर. क्लियर? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, अरे देख लो बेटा, ये तीनों के बारे में देख लो. राइट. आ जाओ इधर पे अभी. ये देखो बेटा, आई गिवन हियर इट. ओपन क्लोज मेरे नोट्स में देखो बेटा, दिखाई दे रहा है सब? ना अभी हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. पहला प्रॉपर्टी क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम बेटा, ये सब जाने दो बेटा. अच्छा, ये पहला मैंने क्या डाला? नमक को पानी में डाला. ए, नमक को पानी में डाला, नमक डिजोल्व हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही फेज है ना बेटा, होमोजीनियस. क्या होगा? अच्छा बेटा, मैंने मिट्टी डाला पानी में तो क्या होगा? डिजोल्व होगा क्या? नहीं ना, मिट्टी दिखाई देगा ना, तो इसको क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस. होमोजीनियस में ओनली वन सिंगल फेज, हेटेरो में मोर देन वन फेज. ऑयल और वाटर लेगा तो ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा ना बेटा, राइट? अभी बेटा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एक्सटेंसिव एज वेल एज व्हाट? इंटेंसिव. चलो बेटा, अभी मैंने पानी लिया, ये पानी में मैंने कितना, ये देखिए बीकर में कितना लीटर पानी भरा? 3. फिर बेटा और मैंने 2 डाला तो कितना हो गया? और डाला बेटा 2, 7 हो गया कि नहीं बेटा? तो अभी ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था? मैं कितना अंदर मैटर डालता हूँ, कितना पानी अंदर डालता हूँ, राइट? तो एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज नोन एज. फर्स्ट पेज पे ये बेटा, फर्स्ट पेज पे यार मैं सब बताऊंगा बेटा, सब फर्स्ट, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा. अच्छा बेटा, मैंने बोला 1 किलो एप्पल और 2 किलो एप्पल, किसमें ज्यादा एप्पल आपको नजर आएंगे? कॉमन ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी. तो मास, वॉल्यूम, ये सब कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव. कौन सा प्रॉपर्टी है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? क्वांटिटी. 1 लीटर दूध और 2 लीटर दूध मिलकर कितना बन जाएगा? ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? 1 किलो एप्पल, 2 किलो एप्पल कितना बनेगा? तो दे आर एडिटिव, दे आर एडिटिव. तो सर्टेन प्रॉपर्टी whose magnitude depends upon the quantity of matter present, they are known as which property? Extensive or extrinsic property, right? बताऊंगा बेटा कहां पे रेफर करना है वो सब. दे आर एडिटिव इन नेचर. चलो बेटा, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, बेटा मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा दिया और बड़ा पेपर दिया तो होगा कि नहीं? ये वाले पार्ट में बाद में बताऊंगा, इंटरनल ये सब बाद में, बाकी के 4 एग्जाम्पल बाद में. पहले के 3 एग्जाम्पल आपको समझेगा. मैंने एक छोटा पेपर दिया तो इतना ही सरफेस एरिया होगा, बाजू में और एक बड़ा पेपर रखा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं? बोलो. क्वांटिटी पे बढ़ेगा कि नहीं? बोलो बेटा, राइट? अभी बेटा मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? अच्छा बेटा, आप ऐसे यहाँ पे बता, यहाँ पे बता. मैंने तेरे को 1 लीटर पानी दिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री. वेरी गुड. मैंने तेरे को है ना 100 ml पानी दिया, कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री. मैंने तेरे को 1 बूंद पानी दिया,
तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या ये? नहीं ना बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव। क्या कहेंगे? इंटेंसिव। मैंने तेरे को 1 लीटर पानी दिया, उसका डेंसिटी कितना होता है? 1। मैंने तेरे को 1 बूंद पानी दिया, उसका भी डेंसिटी कितना होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ही रहेगा ना, कितना नहीं, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है क्या? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव। क्लियर? तो इन्हीं प्रॉपर्टी भी डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज व्हाट? इंटेंसिव। मैंने तुझे इतना बड़ा ग्लास का टुकड़ा दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। एक छोटा सा टुकड़ा दिया ग्लास का, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5। डज इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी? ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंस। ठीक है ना बेटा? और इंट्रिंसिक सर्टेन प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ। अच्छा, इसमें एग्जांपल तुमको क्या क्या आ रहे हैं देखो। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। पानी का विस्कोसिटी बेटा सेम ही रहेगा ना, 1 बूंद पानी ले या 100 लीटर पानी ले, राइट? रिफ्रैक्ट ये दो बाद में बताओगे, ये सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी बाद में बताओगे, पहला ये सब पॉइंट समझ में आ गया ना? इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा श्रेया बेटा? क्वेश्चन कैसा आता है बता। हाँ। अच्छा, मेरे को भी एक बता। मैंने तेरे को ये 1 लीटर पानी था, इसका है ना बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री। ये 2 लीटर था, इसका भी कितना था? 100। अभी दोनों को मिक्स करूंगा, फिर वो जो पानी बनेगा उसका कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट? इज इट एडिटिव? इसका डेंसिटी 1 है, इसका भी डेंसिटी कितना है? 1। मिक्स करने पे डेंसिटी 2 होगा क्या? नहीं। तो दे आर नॉन एडिटिव, दे आर। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पता है? कि आपको 4 एग्जाम्पल देंगे, 4 में से 3 इंट्रिंसिक हो गया, एक एक्सटेंसिव होगा, या 3 एक्सटेंसिव होगा और एक क्या होगा? इंट्रिंसिक। आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करने को, आप कर पाओगे? क्लियर है? चलो बेटा। ओके। टन टन, सो दे आर, बोलो बेटा, नॉन एडिटिव। अच्छा इधर पे आ बेटा, मैं तेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये डेंसिटी कौन सा प्रॉपर्टी है बोल? इंटेंसिव। मास क्या था? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या था? सो तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज व्हाट? इंटेंसिव। राइट ना बेटा? इंटेंसिव हो जाएगा कि नहीं? ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज व्हाट? वो दिया हुआ है बेटा, सब दिया हुआ है वो बेटा। मैं हाँ हाँ मैंने रेशियो। अच्छा। ओके, दे आर नॉन एडिटिव बेटा। ठीक है, तो ये आ गया देख बेटा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ले भाई बस। ये क्या था? एक्सटेंसिव। ये क्या था? और ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। क्लियर है? ओके। अभी ये तुमको यहाँ पर मैं बताता, आप बोलोगे सर आपने इतना सब बताया, ये तो मैंने पहले शॉर्ट में दिया था बेटा, ये देख रहा है कि नहीं? ओए ये देखो, एक्सटेंसिव क्वांटिटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। फिर देखिए एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। ये बाद में मैं बताऊंगा, एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी वो सब मैं बाद में बताऊंगा। ये बेसिक चीज आपको पता है ना? यार देख, ये एडिटिव था, ये क्या है? एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव इज व्हाट? इंटेंसिव। अभी आप देखोगे ना बेटा, मैंने ये सेकंड पेज पे अगर आप देखोगे, दिखाई दे रहा है सेकंड पेज पे क्या है देख? थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन है बेटा, दिखाई दे रहा है? फिर स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था ना, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नहीं करता है। फिर देखिए डेफिनेशन सब दिया है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, फिर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, यहाँ पे डिटेल में दिया है। राइट? फिर ये देखो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का भी बताया बेटा। राइट ना? ओके। अभी आपको बेटा एग्जाम में मैंने बोला था क्वेश्चन कैसा आएगा, ये देखो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का पहले बता देता हूँ। एक्सटेंसिव इंटेंसिव का क्या क्वेश्चन है? टन, टन, अरे आजा भाई। ओ ओ। ऐसा 4 एमसीक्यू दिया मैंने, बोर्ड बुकलेट दिया ना बेटा, उसमें देखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा। यू नो, आइडेंटिफाई विच वन इज एक्सटेंसिव विच वन इज इन। मैंने एक बोर्ड का बुकलेट दिया आपको, पता है ना, पतला वाला। हेलो। उसमें सारे बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स है, वो पढ़ने का एक चैप्टर होने के बाद। नाउ चलो बेटा, अभी इधर पे आ जाते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउ? स्टेट वेरिएबल। व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट? सपोज बेटा मुझे एक गैस को अगर डिस्क्राइब करना है जिसको आपने देखा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? अरे प्रेशर होता है गैस का, फिर क्या होता है, वॉल्यूम भी होगा ना गैस का, टेम्परेचर होगा, और कितना मैंने मोल्स ऑफ गैस लिया है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। हर एक गैस के लिए अलग अलग मैं ले सकता हूँ, राइट? तो सर्टन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा
जैसे मैंने अगर आपको बोला आपने कोई अननोन पर्सन को मुझे डिस्क्राइब करना है आपको, तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा ना, अरे भाई इसका हाइट ऐसा है, बाल लंबे या छोटे हैं, राइट ना, बॉडी कैसा है, ऐसा मैं मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा, तो वेरिएबल हो गया, वो क्या हो गया। हाँ, तो वेरिएबल तुम्हारा क्या क्या होगा बोलो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड। लेकिन वो आदमी को ही मैं यहाँ पे सामने लेके आ जाऊंगा तो आपको पूरा वो दिखेगा कि नहीं, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अगर मैंने बोला गैस, मेरा एक गैस है, उसका प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर, लेकिन मैंने अगर आपको पैसा डब्बे में गैस लाके यहाँ पे बोल दिया भाई इसका प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 22.4 है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आपको पूरा मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक स्टेट डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया, एक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम बेटा, a known set of वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन कौन थे बोलो बेटा, हु ऑल वेर वेरिएबल। ए भाई हीरोइन, क्या था वेरिएबल, प्रेशर था वेरिएबल, लेकिन मैंने बोल दिया प्रेशर 1 है, चल। वॉल्यूम मैंने बोल दिया 22.4 लीटर है, टेम्परेचर भी मैंने डिफाइन कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट ऑफ, नहीं स्टेट ऑफ अ सिस्टम बन जाएगा। अरे जब वेरिएबल को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, स्टेट ऑफ। ओके, स्पेसिफिक वैल्यू देके बेटा। फिर बेटा चेंज ऑफ स्टेट। बेटा मैंने अगर एक गैस लिया इसके अंदर, चलो तेरा बॉटल है, सॉरी। सपोज बेटा मैंने इसके अंदर गैस लिया है, इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है। अगर बेटा मैंने टेम्परेचर चेंज, इसको हीट किया तो टेम्परेचर विल चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा तो बेटा प्रेशर विल ऑल्सो चेंज। प्रेशर चेंज क्यों, क्योंकि हीट करने पे प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, ये गैस विल एक्सपांड और नॉट, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा कि नहीं। बट अंदर मैंने जितना गैस लिया वो चेंज होगा क्या, अमाउंट ऑफ गैस विल नॉट चेंज। वो अमाउंट ऑफ गैसेज है, देख बेटा अगर मैंने एक चेंज किया तो पी चेंज हो जाएगा कि नहीं, ये वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे बेटा। P2 V2 T2 और N क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर वन वन मोल गैस लिया था, वो चेंज होगा क्या, नहीं। तो इनिशियल स्टेट और क्या बोला ये, फाइनल स्टेट। तो चेंज हो व्हेन वन सिस्टम, वन पैरामीटर इज चेंज, इट विल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अभी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा, इट विल ओनली कंसीडर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। कैसे आप वहां पे गए वो डिस्कस करेगा नहीं। करो अभी आप लोगों का आंख खुला, मैं ये पोजीशन पे, अभी आप लोग आंख बंद करो, आंख बंद करोगे और आप, मैं यहाँ पर आ गया, फिर मैं बोलूंगा ओपन योर आइज, तो मैं भी ये पोजीशन पे आ गया कि नहीं, तो इनिशियल स्टेट वाज दैट, नाउ इट इज दिस फाइनल स्टेट। अच्छा लेकिन अभी जब आपने आंख बंद कर दिया, तो मैं इनिशियल से यहाँ पे मैं ऐसे भी जा सकता था, ऐसे ऐसे करके भी जा सकता था, वो आपने देखा। मैं बाहर जाके भी यहाँ पे आ जा सकता था, राइट बेटा, मैं पीछे जाके भी यहाँ पे आ सकता, तो मैंने, आप लोग ने वो मेरा पाथ देखा क्या, आपने खाली क्या देखा, इनिशियल एंड, तो उसको स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन व्हाट, initial state and values depend only on the current state and the initial state, it is independent of the path। पूरे चैप्टर में सारे स्टेट फंक्शन है, खाली दो ही पाथ फंक्शन है। कितने पाथ फंक्शन है सिर्फ, ओके, तो पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा बोलो बेटा, पाथ स्टेट। ओके, अभी बेटा मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। चलो बेटा हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे बेटा, क्या खेल रहे थे, सामने बिल्डिंग था, हमारे पास 3 बॉल थे टोटल, तीनों बॉल फिर से बैट्समैन ने मार दिया ऊपर वहां पे। अभी मैंने आपको बोला कि बॉल लेके आइए, क्या लेके आइए, हाँ आप बॉल लेने गए, ठीक है। अलिश्का गई, अलिश्का ने क्या किया, स्टेयर्स पकड़ के गई और वो बॉल लेके आ गई। सिया ने क्या किया, लिफ्ट पकड़ लिया, लिफ्ट ले गया। फिर श्रिया ने क्या किया, वो जा रही थी, बोला कि आज कुछ तूफान नहीं करते, वो पीछे पाइप होता है ना बिल्डिंग के, वो पाइप पकड़ के। अच्छा, अभी तीनों जन ने वापिस मेरे को बॉल लाके दे दिया। अभी आप मेरे को बताओ सबसे कम काम किसने किया रहेगा, बताओ, सब उससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा काम किसने किया रहेगा, क्लियर है कि नहीं। तो वर्क अगर आप देखा, वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं, एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं पाथ पे डिपेंड करेगा ना, इसका सबसे कम एनर्जी क्या रहेगा, इसका ज्यादा, उसका सबसे ज्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन। पूरे एमसीक्यू में बहुत बार आता है, पूरे चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में आपको याद रखना है, देयर आर ओनली 2 पाथ फंक्शन, उसके अलावा कोई भी आएगा तो क्या है, स्टेट। मैंने बोला वर्क और एनर्जी, तो क्या होगा वो, पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट। देखो बेटा ये एक बॉल लेने जा रहे हैं ना बेटा, एक जन कैसे गया बोल, ओ मैडम जी कैसे गई, ये स्टेयरकेस से, एक जन लिफ्ट से गया और एक जन वो पीछे पाइप पकड़ के गया। क्लियर है कि नहीं, सो दैट विल बी व्हिच इज योर पाथ फंक्शन, समझ में आ गया। ओके, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, हाँ हील्स ना, अरे हील्स इसको लगा, कैसा पैर बेटा तेरा अभी। अच्छा, चलो बेटा,
स्टेट ऑफ ए स्टेट फंक्शन बेटा भी आ जाते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये कहां पर है, यहाँ पर आ जाता है लोग, ये सब फिजिक्स का ही पार्ट है बेटा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा चेंजेस आएंगे। ए स्टेट वेरिएबल मैंने बता दिया। What are state variable? These are the variable which is used to describe a particular state. But when it will become state of a system, when I will define them all. Okay? ठीक है बेटा ये। अच्छा स्टेट फंक्शन क्या था मैंने बता दिया। पूरे चैप्टर में दो ही पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट। ये अंडरलाइन करके रखो अच्छे से, वर्क एंड, खाली पाथ फंक्शन। इसके अलावा कोई भी आएगा तो क्या होगा बोलो बेटा। हम लोग बेटा ये चैप्टर में आगे जाके बहुत कुछ पढ़ेंगे। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, दुनिया भर के टर्म आएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन वो सब तुम्हारे स्टेट फंक्शन होगा। ये पाथ फंक्शन खाली दो ही है। हाँ, नो नो, सिक्स या सेवेंथ नहीं, मतलब तू क्या कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो आपने कितना कंप्लीट किया है? अपना बेटा देखो, सॉलिड स्टेट हो गया, सोल्यूशन हो गया, आयनिक हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और हेलोजन डेरिवेटिव्स हो गया। दिस इज अवर सिक्स चैप्टर। ठीक है बेटा, सिक्स्थ चैप्टर। अरे हाँ नहीं, हेलोजन डेरिवेटिव कभी यूनिट, तुम्हारा यूनिट है अभी कॉलेज में, तो टर्म, क्लास टेस्ट है। टर्म पर लास्ट नहीं, बट टेस्ट है। कौन सा चैप्टर है लेकिन मतलब बताओ। 17 18 हैं? एलिमेंट्स। अच्छा वो तूने बताया ही नहीं। तो पहले बताया नहीं तुम लोग ने बेटा, वो सब मेरे जानते साथ बेटा। अभी हम लोग बोर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं फिलहाल, और तुम्हारा टर्म का पैटर्न फॉलो करेंगे जो मेन टेस्ट होने वाला है ना वो। सॉल्यूशन फिर इसके बाद कर देते हैं। हाँ क्या हो गया। हाँ तो इनको तुम बेटा नेक्स्ट वीक में ना ये, अभी ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया, अभी हम लोग बंद नहीं कर सकते। बस बस बेटा, अभी ये चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, ये खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे ना बेटा। बड़ा चैप्टर कौन सा? ये कुछ नहीं है, बहुत फटाफट होगा, बहुत इजी है। तुमको लग रहा है बड़ा, मैं बता रहा हूँ। अब 4 क्लास में हो जाएगा बेटा, मैंने इतना बता दिया। चलो इधर पे आ जाओ बेटा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इधर पे आ जाते बेटा। ये सब कुछ नहीं है बेटा। ओके, ये सब बाद में करेंगे। इंटरनल एनर्जी ये सब जाने दो बेटा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क वी आर गोइंग टू डू, बहुत इजी है। खुल जा सिम सिम। अच्छा बेटा, मैंने जो सीक्वेंस में दिया ना वो सीक्वेंस में पढ़ना। टेक्स्ट बुक में ना पहले प्रोसेसेस दे दिया, प्रोसेसेस आपको नहीं समझेगा बेटा। फॉलो द सीक्वेंस विच आई एम गिविंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जान दो। प्रोसेस अभी आपको पहले पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, प्रोसेस हम लोग बाद में करेंगे। वर्क, वर्क में हम लोग आ जाते बेटा अभी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं बेटा, वर्क डन, राइट बेटा। हम्म अरे हाँ, प्रेशर वॉल्यूम, वेरी गुड। चलो प्रेशर, हम लोग बेटा मैंने क्या बोला था, पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स। मैं गैस को लूंगा, उसको क्या करने वाला हूँ, कंप्रेस और एक्सपांड। दूसरा क्या करेंगे, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल। चलो बेटा, अभी पहला वाला हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने गैस लिया उसका एक्सपांशन करवाने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ बोलो बेटा। ओके, ये व्हाट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा है। वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया, वेरी गुड। फोर्स अपॉन एरिया, और आगे वॉल्यूम से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको। अच्छा, अभी बेटा आप मेरे को यहाँ पर बताओ, ये एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया साइड स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो ऊपर वी के जगह पे क्या आएगा, डी क्यूब। अरे एक नंबर बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी गुड। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट ना बेटा। ए बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क समझ में आ गया बेटा क्या होता है, क्लियर है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरी गुड। अभी बेटा हम लोग को ना ये डेरिवेशन है बेटा, ये ना हमें तो चैप्टर में ना, भाई वहां पे मत देख, मैं तेरे को बताऊंगा ना, पहला मैं बोलूंगा एकदम सिस्टमेटिकली, मैंने सब दिया है आपको बेटा एग्जाम में ना। ये दो डेरिवेशन, इसमें से दो में से हमेशा पूछते हैं। एक होता है नॉर्मल वर्क डन का, और एक होता है मैक्सिमम वर्क। पहला हम लोग नॉर्मल वर्क डन करेंगे, इरिवर्सिबल व्हिच प्रोसेस। अभी बेटा मैंने ये देखो बेटा, कंसीडर आइडियल गैस फिटेड विद, ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस क्या होता है, ऐसा गैस जो सारे लॉ ओबे करता है। पीवी इज इक्वल टू एन आर, ठीक है।
इसमें बेटा मैंने ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा है, लोगों ने assume किया कि it is frictionless and weightless। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगा, देखो बेटा, आ जाओ भाई, चलो। इनिशियली वॉल्यूम कितना है इसका, V1, प्रेशर कितना है ऊपर, P1। अगर बेटा मैंने इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट आई कैट, टेम्परेचर, वेरी गुड। अभी बेटा मैं इसको ना एक्सपांड करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, तो पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे, ये देख बेटा ऊपर गया कि नहीं, देखो, तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं, बोलो बेटा, और उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, भी मैं सपोज गैस हो मेरे ऊपर, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा है कि नहीं, अगर मैं एक्सपांड होगा तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। अच्छा, प्लीज एक दिमाग में डाल दो, फिजिक्स में आप लोग ने ये चैप्टर में पढ़ा था कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आप लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। केमिस्ट्री में हमको इसको क्या लेना है, याद रखना, यू आर इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट द ग्रेविटी इट विल बी व्हाट, नेगेटिव, अलोंग द ग्रेविटी इट विल बी व्हाट, याद रखना, ये दिमाग में डाल दो, केमिस्ट्री में अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव होता है, अलोंग जाएंगे तो पॉजिटिव। हम्म, चलो बेटा, नहीं फिजिक्स में अलग उल्टा पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। चलो बेटा आ जाते हैं, कंसिडर गैस, अब इसका डेरिवेशन करने का है, व्हाट इज वर्क डन बेटा, बोलो। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा था कि नहीं। अच्छा, फोर्स कौन सा है उस पे, अपोजिंग फोर्स कौन सा है, पी एक्सटर्नल। अच्छा, अपोजिंग के लिए हम लोग कभी भी कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव, ठीक है बेटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव क्यों आया वो समझा। अच्छा, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो बेटा, नेगेटिव साइन एक्सपांशन के लिए, बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बोलो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी फोर्स की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, बोलो, प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, तुमको पता है ये एरिया और ये डिस्टेंस, एरिया क्या होता था, साइड क्यूब, साइड स्क्वायर, ये क्या है, साइड, साइड स्क्वायर इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, साइड क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं, बोलो, बोलो ना, एंड इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम, इट विल बी व्हाट, अरे बेटा ये देखना, ये दे रहा है, ये इतना वॉल्यूम बढ़ा के नहीं, बोलो, तो व्हाट फॉर्मूला वी गॉट, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डेल्टा वी, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 को हम लोग क्या बोलेंगे, अरे दिस वाज माय V2, दिस इज माय V1, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो गया तुम्हारा, डेल्टा V हो जाएगा कि नहीं, इतना बड़ा कि नहीं, चेंज इन वॉल्यूम। तो कभी भी अगर सम में वर्ड लिखा रहेगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, बोलो, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अच्छा, अभी बेटा एग्जाम में ना ये देखो डेरिवेशन आएगा तो कैसे लिखने का, ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ना, ये पूरा आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, ये देखो इधर पे डेरिवेशन दिया है, देखो और इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहां पर दिया है डेरिवेशन, देखो ना, अरे देखो, ई डेल्टा वी, क्लियर है, मिला डेरिवेशन, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बेटा, ये देखो स्टार वाला, राइट, ओके। चलो अभी इधर पे आ जाओ, अभी मेरे पास 2 ऑप्शन थे बेटा, क्या ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन बताओ, हेलो, मैं वर्क डन क्या कर सकता था, पीवी का फॉर्मूला क्या, बोलो चलो, ए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा, बोल बेटा, एक्सपांड, एक्सपांड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, बोलो ना, तो एक्सपांड करेंगे तो अपना V2 क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बोलो। तो अच्छा चलो, नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी व्हाट, तो वर्क डन अगेंस्ट, एक्सपांड होगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इट विल बी व्हाट, कंप्रेस करूंगा तो डेल्टा भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो नेगेटिव इंटू, मैं फॉर्मूला में डालो, प्रेशर तो आगे नेगेटिव है, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वर्क डन विल बी कंप्रेशन में अलोंग द ग्रेविटी इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव याद रखना, मैंने सपोज ऐसा बोला, वर्क डन ऑफ एक्सपांशन इज 20, तो आप सब में 20 लोगे या -20 लोगे, एक्सपांशन, मैंने वर्क डन गिवन इज एक्स, तो आपको एक्स के आगे साइन डालना पड़ेगा, आप क्या लोगे, वर्क डन ऑफ कंप्रेशन इज एक्स, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस, समझ में आ रहा है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया सक्षम,
नहीं, ऐसा वो लोग कभी नहीं देंगे। तो राइट। सर लिखते वक्त फिर से माइनस। मैं सब बताता हूँ ना, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तब। अच्छा, अगर मैंने वैक्यूम लिया है बेटा, ए वैक्यूम में क्या होता है, ये बेटा वैक्यूम मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, मीडियम ही नहीं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तू क्या डालेगी फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या डालेगी यहाँ पे? जीरो। जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोल बेटा? तो मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे वैक्यूम में, अगर एग्जाम में पूछा वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है बोलो बेटा, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, उसको कहते हैं फ्री एक्सपांशन। क्या कहते हैं? तो वर्क डन इन बेटा और आएगा वैक्यूम, तो वर्क डन विल बी व्हाट? जीरो। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे चैप्टर में अभी हम लोग ने गैस को कंप्रेस और एक्सपांड किया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। हाउ वी आर गोइंग टू डू केमिकल में? चलो बेटा, एकदम इजी डेरिवेशन, ये नेक्स्ट डेरिवेशन। फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, मैं पूरा यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के बताता हूँ। ए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बोलो? पी एक्सटर्नल इंटू व्हाट? डेल्टा वी की जगह पे मैं अभी पी, इसको पी लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी टू माइनस वी वन। बोलो ना। ओके, राइट बेटा। अच्छा, अभी मैं इसको ऐसे ओपन कर दूंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा बोलो बेटा, पी वी टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस पी वी वन, बराबर है कि नहीं? ओके। लेकिन अगर मेरे को, अगर इसको रीअरेंज करने का, अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? ओके। ये बट आपको पता है पीवी इजिकल टू क्या होता है बोलो बेटा? एन आर टी। तो अगर मैंने दो अलग अलग गैस लिया है तो इसके लिए, पहले के लिए मैं क्या लूंगा, पी वी वन क्या हो जाएगा, एन वन आर टी। पी वी टू को मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा, एन टू। तो यहाँ पे डाल दो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बोल बेटा, अरे बोलो, एन टू आर टी। यहाँ पे क्या आएगा, एन वन आर टी। दोनों में कौन कॉमन है, आरती कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन आर टी। ये एन टू माइनस, मैथ्स में एक्स टू माइनस एक्स वन को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एन, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एन आर टी। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जी। जी क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैस। किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी इज व्हाट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट बेटा, प्रोडक्ट्स। बट कौन सा, गैस को ही लेने का, सॉलिड और लिक्विड दिया रहेगा तो लेने का गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस। चलो बेटा, अभी मैंने यहाँ पर कुछ आपको देने वाला हूँ, अभी देखो एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है इसको, आ जाओ इधर पे। अरे यार शिट। ओके, ओके, इधर आ जाओ। ओके, अभी बेटा मैं एग्जाम में बोलूंगा फाइंड वर्क डन। ए श्रिया बेटा, फाइंड, आपको कैसे पता चलेगा सर मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, माइनस टी डेल्टा बी करना है या फिर मुझे डेल्टा एन जी आर टी करना है? कैसे पता चलेगा? केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो डेल्टा एन जी आर टी, केमिकल रिएक्शन नहीं दिया रहेगा तो माइनस टी डेल्टा बी। चलो व्हाट इज गिवन यार, श्रेया बोल। पहला वाला, इसके लिए वर्क डन ढूंढ। हाँ, हाँ वेरी गुड। तो अभी तेरे को पहला देखने का, सबका फिजिकल स्टेट देखिए, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो अभी तेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बोल बेटा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, बरोबर है कि नहीं? अच्छा चल बेटा, अभी आ जा बेटा, ये डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या था बोल, प्रोडक्ट का गैस माइनस रिएक्टेंट का गैस। प्रोडक्ट में कितना गैस है बेटा, बैलेंसिंग के लिए जो नंबर होता है वो टू। रिएक्टेंट में कौन कौन था, यहाँ पे भी वन था, यहाँ पर भी वन, तो वन प्लस वन, तो टू माइनस टू, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। नीवा बेटा यहाँ पे बता मेरे को, यहाँ पे क्या करेगी बोल, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में वर्क डन कितना होगा, ये सब गैस है हाँ बेटा, गैस गैस, वहां पे लिख लो, मैं गैस लिखना भूल गया, ठीक है ना, वैसे भी अपने को पता है ना नाइट्रोजन इज गैस गैस गैस। ओए हीरो, कितना बोल नीवा बेटा, हाउ मच प्रोडक्ट में इज देयर? ओके, रिएक्टेंट में हम नहीं आर देयर वन, यार बैलेंसिंग में मैंने क्या लिखा है, थ्री, सो वन प्लस थ्री, सो हाउ मच इट इज, तो हाउ मच आंसर आई गेट, माइनस। बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, माइनस डेल्टा एन जी। कभी भी याद रखना, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव देखना बेटा, ये नेगेटिव है और डेल्टा एनजी का वाला माइनस, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बोल बेटा? 2 RT। बरोबर है कि नहीं? चलिए टाटा सिया, बता यहाँ पे क्या है? ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? गैस। अभी क्या करेगी बोल बेटा? प्रोडक्ट में कितने गैस है बेटा? ए। इसको तू लेगी क्या? 11। इसको भी तू लेगी क्या? 1 - 0, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू तेरे को क्या मिला? 1। तो डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। दिमाग में गया क्या? देख लो। डेल्टा एन जी है, जहां पे भी डेल्टा एन लिखा है उसको ऐसा लिखो, डेल्टा एन जी। यार इधर जी डाल दो यार, जी। और यहाँ पे गैस 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 है कि नहीं? देखो बेटा, इतना इजी था, चिंदी था कि नहीं बोल? हेलो। राइट। इसके सम भी मैं बताऊंगा आपको बेटा। टेन टेन। वही होगा। अभी ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। अभी बेटा आप लोगों ने ना पूरे चैप्टर में ना कुछ सिंबल यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, उससे बाद में अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड, ओके बेटा। ये हाथ में मेरे कोई ना एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है सक्षम बेटा, यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको गिरा रहा हूँ, देखो गिर गया नीचे। देखो दिख रहा है कि नहीं? ये देखो बेटा। अच्छा, ये नीचे गिरा। जब ये नीचे गिर रहा था, इसको कोई रुका रहा था क्या? युक्ति बेटा, कौन गिरा रहा, रुका रहा था? एक कौन? अपोजिंग है, अपोजिंग फोर्स। लेकिन बेटा ये नीचे गिर गया तो क्या ज्यादा था वो बेटा? ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा था ना बेटा। अरे मतलब इसका स्पीड फोर्स, इसका फोर्स ऑफ फॉलिंग डाउन वाज मोर ना बेटा? ओके, अर्लियर इट वाज इन व्हाट? इक्विलिब्रियम। गिरने के बाद वो वापस कहाँ पे आ गया? अच्छा, ये ऊपर से नीचे गिरा तो तू टाइम कैलकुलेट कर सकता है ना बेटा, फाइनाइट टाइम में। तो ये फाइनाइट स्टेप में होता है। अच्छा, ये भी नीचे गिर गया, क्या अपने आप ऊपर आएगा क्या? तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहले क्या था बोलो बेटा? ए विच फोर्स इज ग्रेटर? सीट बेटा, कौन सा फोर्स इज मोर? ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन अपोजिंग। ए, I can calculate the steps, so it take place in what? Finite. Equilibrium was in the beginning and at the end. During the process, there was no equilibrium. Clear है? नेचर में सारे प्रोसेस, बारिश में पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है ना, तो ये सब रियल प्रोसेस होते हैं नेचर में, सब ये रियल प्रोसेस होते हैं। तो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर व्हाट बेटा? रियल। खाली अभी एक पॉइंट इसमें याद रखो, इरिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो चलो बेटा पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है? वेरी हाई। इक्विलिब्रियम इज ओनली एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। राइट आ रहा है ना? बिगिनिंग। आता है ना मीम में, एक अंकल आके होता है इन द बिगिनिंग। यू हैव नॉट सीन दैट मीम? दैट टकलू कम्स एंड अरे बहुत, इट इज वेरी फनी। ओके ओके, एनीवेज इक्विलिब्रियम इज ओनली एट द बिगिनिंग एंड एट द प्रोसेस इज व्हाट? इन फाइनाइट। हमको नेचर में देखने मिलता है ना, पानी ऊपर से नीचे का बॉल हाथ में लेके छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, राइट? मैक्सिमम वर्क इज नॉट अप। अब बेटा इन्हें मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन ना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे यहाँ से अंदर आना है, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? और यहाँ पे से तुम लोग मेरे को रोक रहे हैं, मुझे अंदर आना है। अच्छा, मेरा ड्राइविंग फोर्स और आपका फोर्स अगर दोनों सेम होगा तो मैं अंदर आ पाऊंगा क्या? आप लोग ऐसा पुश कर पाओगे क्या? नहीं। सो वी आर इन अ स्टेट ऑफ व्हाट? तो हमारे बीच में डिफरेंस आएगा भी, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। वी आर इन अ स्टेट ऑफ, बेटा ये प्रोसेस चल रहा है, कब खत्म होगा आप बता पाओगे क्या? सपोज ये प्रोसेस हम लोग 15 मिनट के लिए करें, कितने के लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर 15। पूरे 15 मिनट्स में आप लोग को रेस्ट मिलेगा क्या? मुझे भी रेस्ट मिलेगा क्या? तो दोनों जन कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल। और 15 मिनट तक हम लोग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? ये प्रोसेस कब खत्म होगा हमको पता नहीं। मैंने एक ऐसे टाइम फ्रेम दिया, वी आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं भी कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ, आप भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मैक्सिमम वर्क क्या है? मैक्सिमम वर्क। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी क्या होगा बोलो?
ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस इज वेरी 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 स्मॉल। ये प्रोसेस एक था, वो मेरे दिमाग की एक सोच थी बेटा, मेरे दिमाग की एक क्या थी, सोच। इट इज अ हाइपोथेटिकल, इट इज अ, तो चलो बेटा पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या बोलो बेटा, डिफरेंस इज व्हाट, इन्फिनिटली वेरी वेरी, इक्विलिब्रियम वाज थ्रू आउट द प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप कब खत्म होगा हमको पता, ऐसा कोई हकीकत में लाइफ में प्रोसेस होगा क्या, नहीं है। वर्क डन इज, ये मैक्सिमम क्यों था आपको समझा, सपोज हम लोग 15 मिनट्स के प्रोसेस करे थे, आप भी कंटिन्यूअसली काम करे थे, मैं भी कंटिन्यूअसली, तो कभी भी अगर मैक्सिमम वर्क डन आएगा तो प्रोसेस हैज टू बी व्हाट, रिवर्सिबल। पूरे चैप्टर में कभी भी ऐसा वर्ड आएगा रिवर्सिबल, आइसोथर्मियल, तो वर्क डन विल बी व्हाट, मैक्सिमम। अच्छा भी मैं बताता, आ जाओ इधर पे। तो कभी भी मैक्सिमम वर्क होने के लिए क्या होना जरूरी है, बोलो। ए झींगी, या रिवर्स हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, तो अभी आपको ना इसका डेरिवेशन ही बेटा बोर्ड में एवरी अल्टरनेट ईयर आता है। लास्ट से आया था। हाँ नहीं, लास्ट ईयर नहीं आया था, मैक्सिमम वर्क का न्यूमेरिकल आया था। हाँ, तो ये बार आने के चांसेस है, ठीक है ना बेटा। तो वो मैक्सिमम वर्क डन होने के लिए युक्ति क्या, दो इंपॉर्टेंट वर्ड होना चाहिए, बोलो। आइसोथर्मल है। अभी आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन किधर है, ओ माय गॉड, तो इधर पे आ जाओ। मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम, वेरी 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 और IMP। फाइनल हमारा हमारा नया आया मार्केट में, ठीक है बेटा। है। हाँ चलो आ जाओ। ओके, व्हाट इज रिटर्न बेटा एक्सप्रेशन, दे विल से डिराइव एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, मैक्सिमम वर्क, व्हाट दे विल से, मैक्सिमम वर्क डन के लिए, तभी मैं तुमको पूरा डेरिवेशन बैठा थे। ये अपना हो गया बेटा, मैक्सिमम वर्क डन किधर आ गया, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, हाँ टेन टेन। अच्छा, अभी मैक्सिमम वर्क डन देखिए ऐसा आएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन होगा तो मैक्सिमम, बेटा ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला, इसमें V1 है और ये देखो ऐसा, बेटा मैंने छोटा छोटा वेट्स डाला है, क्या डाला है, छोटा छोटा। हर एक स्टेप में बेटा आई रिमूव वन वन बेसिकली, एक ये वेट निकालूंगा तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, एक ये निकालूंगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा। आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा या मैथ्स में पढ़ा रहेगा, कोई भी प्रोसेस होता है छोटा 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 चेंज करते जाता हुआ डायरेक्ट फाइनल तक पहुंचता। तो अगर छोटे से इसमें डू स्मॉल स्मॉल चेंज, इफ यू वांट टू फाइंड फॉर द एंटायर प्रोसेस वी टू इंटीग्रेशन, ऐसा कभी सुना है क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ऐसा स्नेक जैसा साइन होता है, तो इंटीग्रेट क्यों करते हैं हम लोग कोई भी चीज को, हाँ स्मॉल स्मॉल, बेटा पता है इतना, राइट। हाँ, अबे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टेप में छोटा छोटा, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वेट, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल मूव अप 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 अप, ऐसा छोटे छोटे स्टेप में हो रहा है ना। तो अगर पूरे मतलब ये जब तक सपोज इस पे 1000 ऐसे आइटम्स होते हैं, मतलब जब तक छोटा नहीं होता। हाँ नहीं नहीं छोटा नहीं, जब तक ये सब निकाल दूंगा तो ओवरऑल चेंज कितना होगा। अरे भाई मैं ऐसे ले मेरा फर्स्ट, ऐसा ऐसा करके मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लेके वहां तक पहुंचूंगा, तो छोटे छोटे स्टेप में जो भी चेंजेस को अगर पूरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना है तो वी गॉट इंटीग्रेट, वी गॉट। चल बेटा अभी मैं ये पहला छोटा सा निकाल, ये ऊपर जाएगा थोड़ा, चेंज इन वॉल्यूम छोटा होगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, TB, इसे DX लिखते फॉर स्मॉल चेंज। आ जाओ, एक्सटर्नल प्रेशर इज स्लाइटली स्मॉलर, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो मेरा था उसमें क्या थोड़ा कम है, तभी तो ये गैस ऊपर जा सकता है कि नहीं, बोलो। तो मैं थोड़ा कम कम कर रहा हूँ, ये देख बेटा ये कम कर दिया, ये देख, ए सिया बेटा देख ना क्या कर रही है, फोन बाद में देखे, इधर इधर देख देखना अभी भी देख, अरे 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 अरे, हाँ देखिए बॉल, एक मैंने छोटा सा बॉल को निकाल दिया ऊपर से, ये देख रहे हैं, तो क्या होगा, पिस्टन मेरा ऊपर जाएगा कि नहीं, देख, हाँ थोड़ा सा गया। फिर ऐसा मैं बाद में और एक बॉल निकालूंगा तो और ऐसा हो, हाँ हाँ मतलब सो फ्रॉम, ऐसा हम लोग एक एक स्टेप में करते जाएंगे तो ओवरऑल चेंज कैसे होगा वो हमको पढ़ना है।
आर यू गेटिंग? तो ये देखो बेटा, ये रहा इसका डेरिवेशन, ऐसा है देख। ईच स्टेप व्हाट आई एम डूइंग, लुक 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 हियर। एक मिनट यहाँ पे देख। देख रहा है मैं एक एक छोटा छोटा बॉल गायब कर रहा हूँ, देख यहाँ से गायब, फिर यहाँ से ये वाला गायब किया, दिख रहा है? तो हर एक में छोटा छोटा चेंज हो रहा है कि नहीं? अरे वहां पे मत देख, अभी यहाँ पे देख रहे छोटा छोटा चेंज हो रहा है। ओके वेरी गुड। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कम है। तो अभी क्या हो जाएगा बोलो? इनिशियल वॉल्यूम थोड़ा ऊपर गया कि नहीं? ये देखो V2 हो गया कि नहीं? तो ओवरऑल चेंज कितना होगा? स्मॉल चेंज हो रहा है, सो वी कॉल इट एज डीवी। अच्छा, ये बाहर का प्रेशर था। बाहर का प्रेशर क्या है बोलो बेटा? फाइनल प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा? P माइनस dP, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल प्रेशर कम था तभी तो ये ऊपर गया है ना बेटा। क्लियर है? तो अभी देख, P एक्सटर्नल का वर्क डन का फॉर्मूला ये था कि नहीं? हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं? अरे मैं बताता हूँ, ये देख बेटा क्या हो गया बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं समझा? अरे बोल ना। हाँ हाँ। हाँ क्या हो गया? हाँ, ये P माइनस dP कैसे आया ना, बताता हूँ पूरा, रुक जा, एक। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कम है। तो बेटा ये वाला प्रेशर तुम्हारा क्या है? ज्यादा है। तो ये पुश करके ऊपर जा रहा है कि नहीं? तो अभी क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ये देख। स्मॉल स्टेप लेगा तो मैं DW लिखूंगा कि नहीं पूरा? अभी देख, P एक्सटर्नल क्या है बोलो बेटा? बट P माइनस dP। क्यों रे? अरे यार, ओ हीरो, ये देख। अंदर का प्रेशर कितना था बोल हीरो? ये अंदर का है, कितना था? बाहर का प्रेशर क्या था? P एक्सटर्नल था कि नहीं बेटा? ओके, ये P एक्सटर्नल था, तेरा कौन सा है? बाहर का प्रेशर। अभी ये ऊपर जा रहा है, तो ये अंदर का प्रेशर क्या होगा तेरा? ज्यादा होगा कि नहीं बोलो? तभी तो ये ऊपर गया कि नहीं बोल? तो P एक्सटर्नल में से P में से P एक्सटर्नल कितना था बोल? P में से मेरे को थोड़ा ऐसा प्रेशर कम करना पड़ेगा कि नहीं? इसमें से मैं थोड़ा प्रेशर कम करूंगा तभी तो ये तेरा P एक्सटर्नल का वैल्यू कितना हो जाएगा? P माइनस B। अरे लिखना, एज एक्सपांशन इज P इज ग्रेटर बाय अ वेरी स्मॉल वैल्यू व्हाट? dP। राइट ना बेटा? P इज ग्रेटर बाय अ वेरी स्मॉल। अरे ले भाई, P एक्सटर्नल से ये मेरा ज्यादा है तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करता था? DP ऐड करता था कि नहीं? देयरफॉर अभी P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बोलो? अब समझा ये कैसे आया? क्लियर है? तो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर इज व्हाट, अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सटर्नल प्रेशर इज ओके, हु इज मोर बेटा? अंदर का प्रेशर इज मोर और नॉट? टेल मी हाउ मच इट इज? इट इज P external plus, so if I write P external, so this DP will come here or not? So what I'll get? P external is equal to, very good। अब समझा? अब तू ये वैल्यू कहां पे डालेगी बोल? ये P D मी माइनस DP यहाँ पे डाल दे, क्या मिलेगा बोल? ये देख, ओपन द ब्रैकेट, व्हाट विल गेट? माइनस P dV माइनस DP, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये DV इज ऑल्सो स्मॉल, DP इज ऑल्सो स्मॉल, स्मॉल इंटू स्मॉल, मतलब सपोज ये 0.01 है, ये भी 0.01 है, 0.01 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा? 0.0001। बराबर है? तो स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल को मैं क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट। क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? कैन आई नेग्लेक्ट DP मैं इंटू DV बोलो? DP is very small. DP is very small. So DP into DP we can neglect. So what I'll get? PD। अब बेटा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे छोटा छोटा स्टेप में ओवरऑल चेंज, तो व्हाट विल पुट? इंटीग्रेशन का साइन ऐसा 1 से ए, पूरे वर्क डन में छोटे छोटे स्टेप में वर्क डन होगा, वो पूरा क्या होगा? W मैक्स। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो dw इज व्हाट? W। dy इज y। वी आर इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट V1 एंड, मैं वहां से यहां तक आया ना, मेरा इनिशियल लिमिट वो था और ये फाइनल लिमिट ये है। ओके, ये देखते W मैक्स हो गया वो। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस को हम लोग बाहर लेते हैं, P। ए PV इज इक्वल टू व्हाट? NRT। तो P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? NRT बाई V लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये देख, P इज इक्वल टू NRT बाय, तो यहाँ पे डाल दे बेटा P की जगह पे, तो क्या हो जाएगा बोल? देखो NRT बाई V।
N is number of moles, constant. R is gas constant, constant. T is isothermal process ना, सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सेट बेटा। तो कौन कौन बाहर आ जाएगा? एनआरटी बाहर आ जाएगा कि नहीं? इंटीग्रेशन का रूल होता है, वट एवर इज कॉन्स्टेंट थिंग इट कम्स आउट। लुक हियर, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is what? अच्छा, the integration of dx is x. dx integration of dx by x is log x. इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is log x. पढ़ा है कभी ऐसा मैथ्स में? कौन सा मैथ्स सही नहीं चला? इंटीग्रेशन वही नहीं है तो ये मैं तुम लोग को मतलब यही सिखाया था। ओके कोई बात, ओके तो अच्छा कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने एक चीज लिख लो, दो फॉर्मूला लिख लो बस बेटा, दो ही फॉर्मूला। अरे बेटा मैंने तुमको वहां पे केमिकल काइनेटिक्स में भी कराया था ये दो फॉर्मूला। अरे चैप्टर नहीं, तेरे को खाली फॉर्मूला तो याद रख। ले, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज log x। बस नेचुरल लॉग, इसको ln x भी बोलते हैं। बस यही दो, इतना तो पता है ना बेटा। फिजिक्स में इतने सारे फॉर डेरिवेशन किए तो कैसे किए फिर? इंटीग्रेशन कभी आया नहीं था क्या? हाँ बस ये याद रख बस। व्हाट हैपेंड बेटा? अरे बेटा वी हैव डन दिस, रिमेंबर वेयर इन केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो बेटा अभी इधर पे क्या हो जाएगा बोलो? ए भाई डीवी बाई वी क्या हो जाएगा? लॉग वी, बरोबर है? ये देखिए फॉर्मूला भी दिया है। ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log of v2 माइनस v1। ए log of a माइनस log of b is what? log a by b। तो ये देख माइनस nRT log a by b। अच्छा लेकिन हम लोग बेटा कभी भी log, ये नेचुरल log है, मतलब log टू द बेस ई, log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दे तो क्या लिखते हैं? 2.303। वेरी गुड, 2.303 log 10। तो ln की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा बोल? 2.303 log 10। तो देख आ गया। तो ये डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला है। क्या है डब्ल्यू मैक्स का? ये लेकिन आपने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देयरफॉर V2 बाय V1 को मैं क्या लिख सकता हूं बोल? अरे ये P1 बाय P2 लिख सकता हूं कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे अभी मैं V2 बाय V1 की जगह पे क्या लिखूंगा? एंड अगर सम में प्रेशर दिया रहेगा तो विल यूज दैट फॉर्मूला। देख डाल दे यहाँ पर, ये देख। तो मैक्सिमम वर्क, तो बेटा अभी हम लोग ने टोटल कितना चीज कर लिया? तीन चीज किया। कितना? तीन। कौन सा पहला क्या किया बोलो? एक वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्या किया था? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। फिर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तीसरा हम लोग ने क्या किया? मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क डन का क्या है बोलो बेटा? माइनस 2.03 आरटी लॉग टू द बेस 10 v2 बाय, और माइनस 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 p1 बाय। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ, अब बेटा आप बोलोगे सर ये डेरिवेशन किधर है नोट्स में? तो ये रहा इधर, पूरा दिखा क्या? ये देखो इंटीग्रेशन किया, ब्ला 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 ब्ला। अरे तो दो मेन डेरिवेशन है इसके। पहला वाला कौन सा? ये डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? ये कब यूज करेंगे? इफ एवरीथिंग इज गिवन इन वॉल्यूम। और ये कब यूज करेंगे? प्रेशर दिया रहेगा। मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स में। मिला डेरिवेशन पूरा? एक एक स्टेप पूरा बता दिया है। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आता है बेटा बहुत बार, 3 मार्क्स, समटाइम्स 2 मार्क्स। सिर्फ बेटा मार्क कर ले। ओके चलो, डन ऑल ऑफ यू। नीवा बेटा आर यू गेटिंग इट डियर? ओके, इफ यू वांट ऑन दिस साइड में आप ऐसा लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is what? log x। ठीक है ना? तो dv by v क्या हो जाएगा? log v। dv by v क्या हो जाएगा? log v। क्लियर है? ओके चलो, अब हम लोग को क्या करना है? नोट्स में आ जाना। ये थोड़ा ऊपर आ जाओ। इंटरनल एनर्जी लिखा है बेटा। क्या लिखा है? इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है? यू। इंटरनल एनर्जी क्या है बोलो बेटा? यू। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द एनर्जी, सम ऑफ
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कोई भी सिस्टम है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ आवर शेप, बिकॉज ऑफ आवर। फिर हमारे अंदर क्या है, एटम्स, न्यूक्लियर, वो सब होता है कि नहीं। अच्छा, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स, सब होगा कि नहीं, ये देखो। तो इट इज सम ऑफ ऑल, ए सम ऑफ ऑल। अभी याद है ना, मैंने इंटरनल एनर्जी में बोला तो बाद में बताऊंगा। ये इंटरनल है, सम ऑफ व्हाट बेटा, ऑल है, सम ऑफ। अच्छा, ये सपोज मैं गैस हूं, अगर आपने मुझे हीट किया तो मेरा वाइब्रेशंस बढ़ेगा कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम लोग बेटा कभी भी एग्जैक्ट यू नहीं ढूंढ सकते, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट डेल्टा यू, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट। सपोज है ना, नीवा और युक्ति दोनों जगह, युक्ति को पता नहीं कि नीवा के पास कितने पैसे हैं, एग्जैक्ट पैसा पता नहीं था उसके वॉलेट में कितना पैसा। लेकिन अभी ये यहाँ पे नीवा नीचे गई, दो वड़ा पाव लिया, उसने देखा युक्ति ने कितने 40 रुपया दिया। फिर आगे गई, एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया, 20 रुपया। तो युक्ति को पता था क्या इसके वॉलेट में कितना पैसा है, नहीं देखा। ये सुन बहुत अच्छा था कौन था, लेकिन इसने कितना पैसा खर्चा किया वो पता चला कि नहीं, इसको कितना पता चला, सिर्फ 60 रुपया। तो अभी इसके वॉलेट में कितना चेंज, कितने का डिफरेंस आया रहेगा, बोलो बेटा। Originally, what she was knowing how much money she was having, but she calculated what change difference. क्लियर है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी कोई भी सिस्टम का डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते। कोई इंटरनल सिस्टम आपके साथ में चल रहा है तो उसमें चेंज इन एनर्जी वी कैन कैलकुलेट, सो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट बेटा, डेल्टा। व्हाट यू कैन कैलकुलेट ऑलवेज, ओके। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा है बेटा, थोड़ा बहुत क्या पढ़ा है, बोलो बेटा। हाँ बोलो, एनर्जी कैन, हाँ वो, हाँ बोलो, एनर्जी कैन ना इधर भी फिजिक्स में पढ़ा है ना बेटा, ना नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओके, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट, कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलेगा ये कहाँ पे, आपने स्टेटमेंट तो बताया ही नहीं, तो मैं बताता हूँ बेटा इधर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओए अम्मा किधर है, ये रहा, टन, टन, ये रहा। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 71 पे ना, ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स, total internal energy of an isolated system is constant, energy is neither created nor destroyed and can be converted from one form to, so this is first of। हाँ ब्रेक क्या, तो अभी हो गया, टाइम होने को आ गया बेटा अभी, ठीक है ना बेटा। हाँ, लीवर्स अर्ली मतलब क्या है बेटा, 3:30, तो आप लोग लेट आए इतना बेटा, ऐसा करोगे। न्यूमेरिकल्स करना है, लॉग टेबल लाए हो क्या, अरे यार तुम लोग बेटा लॉग टेबल बुक में रेडी रखने का, चलो बेटा इधर पे आ जाओ। ठीक है, अब बेटा हम लोग को क्या करने का है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्म कौन सा फॉर्म करना है, फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इमेजिन आई एम अ गैस, ए बेबी, आई एम अ गैस में एक सिस्टम है, मेरे ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। अभी आपने मुझे क्या क्या, अच्छा मेरे अंदर खुद का एक एनर्जी होगा सब, वो क्या था, इंटरनल एनर्जी U1, मेरे अंदर मेरा खुद का एनर्जी कितना है, U1। अभी पूरे चैप्टर में हम लोग हीट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, Q, क्या सिंबल यूज करेंगे। अभी अच्छा, अभी मैं गैस था, अगर आपने मुझे हीट सप्लाई किया तो मैं क्या हो जाऊंगा, बोलो बेटा, एक्सपांड होगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, तो पहला मेरा इंटरनल एनर्जी कितना था, U1, आपने मुझे हीट कितना सप्लाई किया, क्यू को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद मैं एक्सपांड हुआ कि नहीं, एक्सपांड मतलब एक्सपांड होने के बाद मैंने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया कि नहीं, बोलो बेटा। तो मेरा अभी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, पहला मेरा कितना था, U1, मैंने क्यू को एब्जॉर्ब कर लिया, तो U1 प्लस, ये सुनना बेबी, पहला U1 था, अभी ये हीट मैंने, अच्छा तो ये हीट आ रही है, ये हीट आ रही है, मतलब हीट को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो U1 प्लस कितना हो गया, मैं क्यू। अच्छा, अभी मेरे को हीट बढ़ेगा तो मैं शांत बैठूंगा क्या, मैं वर्क डन भी किया कि नहीं, तो मेरा फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, U1 प्लस क्यू प्लस W, तो U2 विल बी हाउ मच, U1 प्लस क्यू प्लस W। देख वहां पे दिखाई दिया, पहले मैं कौन था, ये देखो U1 था,
ऊपर लेके जाओ, ये ले भाई। देख, पहले मैं क्या था, आपने मेरे को हीट दिया तो U1 + Q हुआ, और मैं एक्सपांड भी हुआ कि नहीं, तो मेरा फाइनल U2 कितना हो जाएगा, U1 + Q+, तो U2 इज इक्वल टू, ऐसा मैं लिख सकता U2 इज इक्वल टू U1 + Q+W। मैथ्स करो, इसके पे लेके जाओ, U2 - U1 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U इज इक्वल टू Q+। अच्छा अभी बेटा डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है, इज इक्वल टू व्हाट, हीट प्लस वर्क डन, हीट प्लस, तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज बेटा टोटल हम लोग ने अभी कितने फॉर्मूला कर दिए, 5। नहीं नहीं, पहला पहला, ठीक है। सबसे पहले W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, फिर W इज इक्वल टू -डेल्टा Ng RT, केमिकल रिएक्शन के। तीसरा फिर हम लोग ने क्या किया था बोलो बेटा, W max, याद आ रहा है कि नहीं, -2.03 nRT log to the base 10 V2/V2, और उसके बाद वाला क्या था, E1/V2। और अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू, तो बेटा इधर पे आ जाइए, टेन टेन, ये देखो बेटा अभी न्यूमेरिकल्स करने, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको क्या क्या पहला आज हम लोग ने सबसे पहला ये क्या पढ़ा था, ये देखो इरिवर्सिबल, एक दिख नहीं रहा है तो डार्क कर दो, इरिवर्सिबल। तेरे को कब कैसे पता चलेगा, तेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो इरिवर्सिबल लिखा रहेगा, ये कैसे पता चलेगा, डब्ल्यू मैक्स क्या, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल लिखा रहेगा। अच्छा एन नहीं दिया रहेगा तो एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन, फिर ये किसके लिए यूज करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू -डेल्टा NG/RT, अगर क्या दिया रहेगा, केमिकल रिएक्शन, क्या दिया रहेगा, टेन टेन एन। और ये अभी किया था कि नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस, ओके। अब बेटा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमको दिमाग में होना चाहिए, पूरे चैप्टर के में मैंने आपको बताया था। अच्छा मैं अगर गैस वर्क डन बाय द सिस्टम इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, बाय द सिस्टम बोला तो नेगेटिव, ये अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो कहाँ पे काम कर रहा है, सराउंडिंग पे, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग विल बी आल्सो व्हाट, अरे मैं सिस्टम हूँ, मैं अभी सराउंडिंग पे काम कर रहा हूँ, तो एग्जाम में अगर ऐसा लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम इज x, तो आप क्या बोलोगे, -x, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इज व्हाट x, तो आप क्या लिखोगे, माइनस, देखना वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन सराउंडिंग इट विल बी ऑलवेज वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग द ग्रेविटी है, बहुत, इस सिस्टम पे कौन काम कर रहा है, सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सराउंडिंग भी अगर आएगा तो देख बेटा, ऑन सिस्टम और बाय सराउंडिंग विल टेक इट एज, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इज 20, तो आप लोग क्या लोगे उसको, +20, वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज 20, सो विल टेक इट एज +20, हीट एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक में Q विल बी पॉजिटिव, heat loss exothermic heat will be Q will be what, दिमाग में जा रहा है, ओके। अब बेटा है ना, आपको है ना सब में बोलोगे ना, प्रेशर और आर का कौन सा वैल्यू कब लेना है, आर का कौन सा वैल्यू, अगर प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में होगा, अच्छा यहाँ पे लिख दो, और बार बार भी डाल दो यहाँ पे, बार, और लीटर यहाँ क्या हो सकता है बेटा, DM3, लीटर और DM3 दोनों सेम होता है, अगर प्रेशर बाहर या एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, तो आर का वैल्यू क्या लोगे, 0.0, ए एमसीक्यू के लिए सॉल्व करने के लिए 0.0821 का वैल्यू क्या लेने का, 1/12, इजी हो जाएगा। अच्छा ये अगर तेरा प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है या पास्कल में है या मीटर क्यूब में, तो आर का वैल्यू क्या लोगे, जूल पर केल्विन पर मोल। ए अगर सम फास्ट करना है तो 8.314 को क्या लेने का बोलो, और बेटा 2.303 को ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लेने का तो क्या लेने का, बेटा ये काट डालो, ये नहीं मेरे। अच्छा बेटा यहाँ पे एक लीटर एटमॉस्फेयर लिखा, और अगर याद रखना लीटर बार अगर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो वो 100 जूल्स लेना है, ये आपके HSC के टेक्स्ट बुक में दिया है इसके लिए, एक्चुअली वो एग्जैक्ट 100 नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन आप 100 जूल्स लेना, ये लिख लो बेटा, ये लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच, एंड 1 कैलोरी इज 4.184 जूल्स,
क्लियर है? बोलो रे। क्या है रे? हाँ जा सकते ना भाई, क्यों नहीं जा सकते? Sir, can I switch on? या आई विल डू इट भाई, डोंट वरी। ठीक है। Yeah. एसी का टेम्परेचर की शुरू करना है तो वो भी कर दे। आपने एसी फिक्स किया क्या? कौन सा? ये वाला। नहीं, सर्विसिंग हुआ रहेगा उसका, ठंडा ज्यादा हो रहा है Because ना। it wasn't that. हाँ तो सर्विसिंग वो आया था बात, ऐसा ही है बेटा। चलो, डन डन, राइट। अच्छा, अभी ये चार फॉर्मूला खाली आप देखो बेटा, दो छोटे छोटे न्यूमेरिकली करोगे, बड़ा वाला नहीं करोगे। अरे यार बस ना। ओके, ओके मैं सुन रहा हूँ, पर एक दो, एक दो। चलो भाई ओरली वाले करवा देता हूँ। हाँ, ले। चल अभी तू ही कर ओरली। चलो आजा श्रिया, तू ही करेगी, वेरी गुड। नहीं सिया, ये रंगोली बाद में कर, चल। पढ़ यहाँ पे क्या दिया है, श्रिया बोल। क्या नाम है? हाँ सिया ही बोला मैंने। नहीं सिया, सिया पहले इसको बोला फिर तेरे को बोला। हाँ बोल क्या करेगी। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम along the gravity है ना, तो पॉजिटिव इट इज। तो वर्क डन तेरा कितना है, प्लस 20, एंड इट रिलीजेस हीट, रिलीजेस, तो क्यू कितना हो जाएगा बोलो बेटा, नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा। अब समझा क्या? अब समझा, वो मैंने क्यू दिया था नोटेशन, ए सीट बेटा देख लेना बेटा, क्यू इसको पॉजिटिव लेना पड़ा, भी समझा क्या? ऑन द सिस्टम हीट रिलीज, तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी अपने को बोला क्या ढूंढने के लिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो अभी क्यू का वैल्यू कितना है बोल, -10, डब्ल्यू का कितना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, हो गया बेटा। यहाँ पे ले ले, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तेरा, वहां पे लिख दे बाजू में 70। है क्या, हो गया, इसका सोल्यूशन है। ये इसका गिवन इंफॉर्मेशन था और ये इसका सोल्यूशन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इतना चाहिए, अगर यहाँ पे मैंने एब्सॉर्ब लिखा रहता तो बोल क्यू को क्या लेती है, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे ऑन द सिस्टम के बदले मैंने अगर बाय द सिस्टम लिखा रहता तो इसको आप क्या लेते हैं, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? अरे दो ही नोटेशन खाली याद रखने का है। हाँ फिर ये चाय चाय चाय, हाँ चाय, हाँ पैसा मत देना, मैं मेरा विदाउट शुगर और वो विद शुगर चाहिए ना। आएगा बेटा, दे दे बस। आई लोग भी पैसा नहीं। और किसको पीना है? इजी, लिख लो वहां पे, ऊपर टेक्स्ट बुक में लिख ले, लिखा पेज नंबर, अरे पेज नंबर 71। यू वांट टी बेटा? ये तुमने लिखा क्या, लेकिन देख ये बेटा इतना इजी था, 71 थे। पेंसिल से खाली करना है, देख ना ये गिवन है और वो फॉर्मूला है। देख या बेटा टेक्स्ट बुक में ही लाइक करो, ये समझा ना, हीरो बहुत इजी चिंदी सब। मैंने पेन का ये बहुत इन्फॉर्म ऑन द सिस्टम था, इसके लिए मैंने पॉजिटिव लिया, ये जानना बहुत जरूरी है। I won't drink it. It's really hot. What is the point of getting? No, that's the point. Not going to get. Array, but we can't do. And after my doctor comes and goes. Sir, तो process next पर नहीं प्रोसेस प्रोसेस अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी खाली जो चिंदी है तू खाली ऐसा ओरली कर सकता है सर। चल तू ही आजा हीरो। अरे भाई ओरली करने का ये तुम लोग खुद से करोगे प्रैक्टिस। चल क्या लिखा है हीरो बोल। 3 moles of an हाँ आइसोथर्मल दे दिया है, 15 डीएम क्यूब से कितना कर दिया मैंने, तो ये मेरा V1, ये मेरा V2, एक्सटर्नल प्रेशर भी दे दिया है, P एक्सटर्नल भी दे दिया है बेटा। तो क्या था फॉर्मूला हीरो बोल, वर्क डन बोला है ढूंढने के लिए, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है यार, ये गब्बास रे,
डेल्टा वी मतलब T2 minus P1. हाँ, लेकिन बेटा ये लोग ने अच्छे से ध्यान में, वो लोग ने क्या बोला, कैलकुलेट वर्क डन इन व्हाट, डीएम क्यूब बार, और अपने को ये आंसर किस में आने वाला है, ये लोग ने बार और लीटर डीएम क्यूब में आने वाला है। तो -1.2 इंटू V2 माइनस V1 करेगा तो कितना हो जाएगा बोल, 20 माइनस 50। हाँ वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना बेटा। लेकिन ये आंसर तेरा किसमें आया, बार डीएम क्यूब। ये मैंने आज तेरे को लिखवाया था। बार डीएम क्यूब को अगर जूल में कन्वर्ट करने का है तो क्या है बोलो बेटा, ये बार डीएम क्यूब में आ गया। बार डीएम क्यूब को जूल में कन्वर्ट करने का है तो कितना बोलो, 100 जूल्स। याद आ रहा है कि नहीं। हाँ. तो कितना हो जाएगा, -600 जूल। क्या था बोल, कुछ था दम, पहले बोल रहे श्रिया कुछ था क्या दम। ये ले बेटा, आप समझा ये। चलिए भी ओरली कर फटाफट। Yes. हाँ चला जा कनिष्क, क्या दिया है। Calculate the constant external. हाँ तो मतलब अपने को पी एक्सटर्नल ढूंढने का है, तो फॉर्मूला तो अपने को पता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर है कि नहीं। अभी क्या दिया है, कंप्रेस, तो माने मोल ऐसे कंफ्यूजन के लिए दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है। 25. हाँ तो ये तेरा V1, ये तेरा V2, और इनमें वर्क डन दे दिया है तेरे को, वर्क कितना दिया है। 4 degrees. हाँ झूल में दिया है बेटा, किस में दिया है, हाँ जूल में दिया है। अच्छा तो अभी तू यहाँ पे वर्क डन कितना डाल देगा बोल, तेरा ये जूल में है ना, तो इसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएम क्यूब बार में। क्यों डीएम क्यूब बार में करेंगे, बिकॉज ये डीएम क्यूब में दिया है बेटा, तो बराबर है, तो इसको डिवाइड बाय 100 करना। मैंने अभी रिलेशन दिया था ना बेटा, 100 डीएम क्यूब बार, डीएम क्यूब बार इज 100 जूल, राइट ना। तो ये मेरे को वर्क डन मिल गया। अभी मेरे को क्या क्या पता है, ये पता है, ये पता है, और ये पता है, हो गया, डाल दे, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो ना, इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, अभी तुम्हारा खाली 2 सम बचा है, वो मैं तुमको आज नहीं कराऊंगा। बस कौन सा पता है क्या, मैक्सिमम वर्क डन का, एंड वर्क डन ड्यूरिंग व्हाट, केमिकल प्रोसेस। चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास ब्रिंग लॉग टेबल। Bye. बाय बाय।